Suppose this is a white light. This is a white light. White light never travels. The light never travels in a single-handed way. So it is a beam of light. So we are just considering one white light here. Okay. And as this is air medium, correct? And this is denser medium, means glass medium. This is prism, glass. Okay. So when light enters from rarer medium to denser medium, then it will bend towards normal. This is the normal. So it should bend like this. So most deviated color is the violet color. So it will go here. And this is the white screen. Understood? White screen, which is known as spectrum. Known as band of color is known as spectrum. ये कैलेंडर हटा दें, ठाकुर प्रसाद जी आ जाएंगे तो थोड़ा स्पेस में लगेगा. हाँ. Okay. So this one will known as, this is white screen. So that you can see all the color screen, and this is spectrum. What is a spectrum? Have you written? What is a spectrum? Band of single color. Okay. Now just look at here. It should go like this. This is the original path of the undeviated path of the white light. This is white light. Am I visible? Yes. White light. हाँ इतना मोटा है कैसे नहीं दिखेगा? Okay. मेरा सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड कर ले ये सब, क्योंकि जो बोलोगे वो कर लेगा रिकॉर्ड. अब वायलेट लाइट को नीचे देते हैं. 1, ये एक बॉक्स बना दीजिए. दिस शुड बी 7 बॉक्सेस. 2, 3, 4, 5, इसी के अंदर बोलो 6, and last but not the least 7. So this one is VIBGYOR. ये क्या बन गया? विग्योर. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Red is the least deviated color. Red is the least deviated color because it has the highest wavelength, longest wavelength. Okay, and maximum deviated, maximum deviation, max deviated, that is violet, VIOLET, violet and red. Understood? So here is the answer of all the questions I have asked to you. I have asked that why all the danger signals made up of red colors. Train signals, even if you will see a small ball on FM tower, red color. If you have seen a flying plane at night, you will see that you will also see a small red bulb lighting in that plane. Symbol of danger, sign of danger signal, that is, you see, अगर कोई ट्रैक्टर में रोड लेके जा रहे हैं तो पीछे वो लाल कपड़ा बांध देते हैं. When I was young, I was not able to understand. लाल कपड़ा काहे बांधा है? साड़ा ढूंढ देगा. साड़ा ढूंढ देगा मतलब मार देगा इधर आगे. कि एक्चुअली आपको पता है जो आपको लगता है कि बैल को दिखता है, बट दे डोंट सी कलर्स. दे आर कलर ब्लाइंड. उनको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है सब कुछ. लोगों को लगता है लाल कलर पर रिएक्ट होता है, उनको सारे कलर एक ही जैसा दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है. Now red color, all the signals and FM tower consist of red bulb, a small red bulb, plane consists of a small red bulb. Your train signals, danger signals, stop signal is the red one. हाँ, एक बार क्या हुआ कि एक बार ट्रेन में ऐसे हाथी जो है वो लेटी हुई थी. ट्रेन आ रही थी, हाथी का पाँव फंस गया था. ठीक है, तो मेरा एक दोस्त था, ठीक है, बोला अभी हम क्या करें. हम बोले क्या करें? लाल टी शर्ट है, फाड़ दे. बोले क्यों? लाल टी शर्ट से क्या होगा? बोले तुम कर दे, क्या होगा कि हम बताएंगे. बोला ओके. बोले फाड़ दे भाई. पीछे से पकड़े
अरे महादेव, ठीक है, फाड़ दिए। उसके बाद बोले ऐसे लेकर खड़ा हो जा, ट्रेन उधर से आ रही है तो ऐसे दौड़, ऐसे ऐसे करते हुए। हाँ, पीछे से बहुत फनी दिख रहा था, ठीक है, एक तो पतला दुबला था, ऐसे से लेकर दौड़ रहा है। ए भाई, खाली हाथ हिला और कुछ नहीं। बोलता क्या हुआ भाई? तो कमर मत हिला, खाली हाथ हिला, ठीक है, बहुत गंदा दिख रहा है, लग रहा है अभी टूट जाएगा बीच से। तो बोलता है अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, ओके। ट्रेन उसके नाक के पास आके रुक गई। ट्रेन ड्राइवर बोला क्या हुआ? पिटाई करता उसको, डंडा लेके निकला था, ठीक है, मारने के लिए। ऐसे से कर रहा था तो उसको लगा कि वीडियो बना रहा है, रील बनाने के लिए खातिर। आजकल एक बच्चा को ट्रेन के नीचे सो गया था, ट्रेन जब पूरा पार हुआ तब तक वो उठ के एकदम खुश हो रहा है, नीचे का व्यू पकड़ा होगा उसको। तो उठा, रुका तो बोला कि वो देखिए, तब उसको बोला अच्छा चलो, अच्छा काम किया, ठीक है ठीक है। फिर वो रेलवे अधिकारी होते हैं, आरपीएफ वगैरह होते हैं, वो आए, उसको फिर ऊपर बुलाया गया और उनको हटाया गया। तो ऐसे रेड सिग्नल, अब देखिए देयर आर फॉग इन देयर, ऑल द सिग्नल्स आर नॉट सेम। सो इन विंटर सीजन देयर आर अ लॉट ऑफ फॉग इन द एटमॉस्फेयर। सो रेड कलर, as we know that red color is the light which has the highest wavelength. Due to its longest wavelength, it is scattered most in the atmosphere. Scattered least, देखो आप सो रहे हो, कोई रिवेल नहीं किए, नहीं सर, least light red जिसका भी wavelength ज़्यादा होता है, whatever light having the highest wavelength, it will scatter least मतलब सबसे कम। अभी बताया ना, attention सोल्जर, तभी ध्यान रहेगा यहाँ पे। तो रेड कलर स्कैटर्ड द लीस्ट, इसीलिए ऑल द सिग्नल्स ऑफ डेंजर सिग्नल्स, स्टॉप सिग्नल्स, ओके। अब कहेंगे सर खून इसीलिए लाल होता है क्या? नहीं, उसमें तो प्लाज्मा होता है, हाँ, रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो ऑल द डेंजर सिग्नल्स आर मेड अप ऑफ रेड कलर बिकॉज of it can scattered by a minute particle present in the nature least. Because of least deviations, least scattering, it can reach to our eyes. This is the reason when sun is in the horizon, horizon means east west. हाँ, एक छोटा बच्चा तुतलाते हुए आके पूछता थल ई थन द कौन थन? बोले सन नहीं, वही सर थन। बोले कुछ और बोल रहे हैं बकलोल। हाँ सर आप समझ गए ना मेरी भावना को? बोले भावना थोड़ी अच्छा बोल रहा है। हाँ थन वही बोल रहे हैं, थन द फुलम में होता है, द पथिम में होता है, लाभता है दिखता है। बाकी तुम्हें तो वो उजला दिखता है, उत्तम में लाभता है दिखता है। बोले इन्हें आओ, तुमको पता है वेवलेंथ क्या होता है? सॉरी, वेवलेंथ क्या होता है? अभी कहते जानेंगे सर, अभी छोटा है। बोले क्वेश्चन मार्क कहाँ से पूछ रहा है? वो तो दीदी वो आप बात कर रही थी तो हम भी सुन लिए। बोले जाके दीदी से पूछो। अब देखो सन, व्हेन सन इज द हॉरिजॉन, अगर सन का पोजीशन देखो ऐसे सन है, व्हेन ओवरहेड ऐसे रोटेशन है अर्थ का, दिस इज द सन, ओके। अब ये अर्थ, दिस इज द रोटेशन रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ, सो इट इज रिवॉल्विंग अराउंड, सो दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस, but this is north south, least distance. But if it is in the this side like north east or west side, तो it is the longest. आप जानते हैं कि ये अर्थ ऐसे नहीं है, कैसे है? यह है थोड़ा अंडा आकार। तो when sun is in a horizon, अब this is the longest distance, होगा ना? Longest distance, okay? So when earth is in east-west direction, so it is in the longest distance from the sun. So only because the red color has, as I told you earlier, that red color has the longest wavelength, highest wavelength. It is the only ray of light, color of light, which can scatter all the lights and can reach to your eyes. And we know that whatever reflected from the nature, we are able to see that. Understood? If you are standing in a dark room, but you can see a boy in the street light, but that boy cannot see you because there is no reflection. Understood? So that red color scattered the least. That's why it is traveled to our Earth planet. It is from the farthest distance
and we are able to see red color in the evening. So if there would be any question related to this, like why this color of sun in the evening or in the morning is of red color, so your answer should be Because it's an horizon. because it has red color has the highest longest wavelength and it is the only color of light which can travel the longest distance. Rest all the colors are scattered in the nature, okay, because it has less wavelength than red color. That's why all the signals are made up of red color, so that it can be seen from even a far distance. Understood? For example, train signals in foggy day in winter season. Okay, if there is a lot of fogs, red color can be seen from few meters away, so train can stop. रेड सिग्नल्स जो रोड में बांध देते हैं लाल कलर, तो उसे देख के पता चले कि ये डेंजर कैसा है. हाँ, जैसे मेरा दोस्त डांस कर रहा था रेड टी शर्ट लेके, हाँ, और ये अच्छा लग रहा था, ऐसे से कर रहा था एकदम. हमको लगता है वो अभी पंचायत वाला डांस देख के आपको याद आ गया था. गज में डांस कर रहा था, एक पाँव ऐसे उठा रहा था, एक पेट नहीं दिखाने का मेरा, डांस देखने के चक्कर में पेट दिखा देती है. हाँ, ओके, नाउ आस्क मी एनी क्वेश्चन. Spectrum, band of light is called spectrum. This band of light is called spectrum. Okay, and red color is the least deviated color. Okay, and what's difference between the most important topic you left it, and that is Tyndall effect and scattering of light. Scattering, many students consider this that scattering of light and dispersion of light both are same thing. Whenever I was in your class, scattering of light and dispersion of light same में होता है. नहीं, जैसे आप बरसात में फिसल के गिर जाए और घर में छोटा भैया भाई जाकर आपको बोल रहे हैं मम्मी दीदी छितरा गई. अरे क्या बोल रहे रे, उधर से दादी आपकी दीदी छितरा गई रोड पे. बोली क्या हुआ, फिसल के गिर गई, जैसे हम गिरे थे. ठीक है, और गिरे थे तो चारों खाना चित्त हो गए. इतना जोर से चोट लगा था, कहाँ लगा था नहीं बता सकते. ठीक है, उठे नहीं किए थे कुछ देर तक, सुतल रहे थे उसी. उसके बाद दोस्त लड्डू नाम उसको बोलता है, अरे मर नहीं गया रे, उठेगा रे, एम्बुलेंस बुलाया. उधर से कुत्ता आ रहा था 2-3 को, उठ के तुरंत भागने लगे. बोले अभी तो मॉडल पड़ा था, अभी उठ के भागने लगा. बोले कुत्ता से कौन नहीं डरेगा, कुत्ता. तब छितरा जाना मतलब जैसे मुट्ठी भर ऐसे राई, when mustard seed you have taken in your hand and you just scattered it. Scattered is छितरा दो, random directions. So light reflected in all random directions, that is called scattering of light. हाँ, जैसे सन है, अब यहाँ बीच में सन है, इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है ना, light are getting scattered in all the directions, so it is called scattering of light. अब जैसे आप कभी यहाँ बिरसा चौक से सिंगमोरा आए, कभी गए बस से? Have you ever been traveling with bus or auto? So you see the canopy at near the airport. You see the canopy of trees, leaf. So when a beam of light, and even आप बचपन में हम लोग ऐसे गेम खेलते थे. ऐसा इमेजिन करो हमको, अच्छा पैंट तो काला है, ब्लू समझो, और शर्ट कौन कलर का, शर्ट तो पहने ही नहीं थे, फटा हुआ बनियान था मेरे से. I had a torn बनियान and half blue pant. पैंट इसलिए बोल रहे हैं कि बोल नहीं सकते वो क्या है, वो चाचू का जगिया था जो अपने डरबरी में बांध के पहन लेते हैं. ठीक है, और एकदम सांस एकदम फुल टूस घूमते रहते थे. पेट तो निकला हुआ था उस वक्त भी था मेरा. हाँ, एकदम स्टाइल में घूमते रहते थे. और इन द समर सीजन, इन द टाइम ऑफ फ्रॉम 11 o'clock to 2 o'clock और 3 o'clock, सारे बच्चे को मम्मा डांट के सुला देती थी. हाँ, क्योंकि बाहर नहीं जाना है धूप में बचाने के लिए. आज तो गवर्नमेंट ही बैन कर देता है. ठीक है, बाहर ही निकल लेता था धूप में. हाँ, स्कूल बंद हो जाता, सब हो जाता, तो धूप में सुधा दिए. ठीक है, अब वो जो वेंटिलेशन होता है ना, उससे ऐसे रे ऑफ लाइट आ रहा है. हाँ, एंड आई हैड अ मैग्नीफाइंग ग्लास. ठीक है, मजा आता था. ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास लिए और पेपर जला. पेपर क्यों जलाएंगे, किसी के वहां फोकस किए, जहाँ नहीं करना चाहिए था, फोकस किए, और जैसे उसको गर्म लगा ऐसे करके सो गए. हाँ, हम तो कुछ कर भी नहीं किए, वो पहले बार ऐसे किया. ओए बोले मच्छर हो, क्या हुआ भैया, मच्छर काटा होगा. अरे बहुत गर्म लगा भाई. बोले मच्छर को हीट कहाँ प्रोड्यूस करता है, ऐसा
फिर दूसरा बार, अब की बार इधर गर्म लगा तो इधर करके सो गए। हाँ, उनको पता नहीं था, अब की बार फिर से आने वाला है। ऐसे किए, फिर से लाइट को कंसंट्रेट किए, फोकस किए, ठीक है। फिर से दूसरा, अरे फिर गर्म, मम्मी देखो ना कोई क्या कर रहा है, गर्म लग रहा है। मम्मी बोली बहाना करेगा ज्यादा, मारे ना तुम थप्पड़, अभी सब ध्यान ही ठिकाना आ जाएगा। बाहर जाने का नोटिस कर रहा है। क्या दिल में आनंद मिला, किसी को डांट खिला के भगवान वाला फीलिंग आ रहा था। बैठे बैठे सारा काम हो रहा है। अब उसमें देखो मेरा बच्चा, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम दैट वेंटिलेशन, you will see there are minute particles visible in that light. हम लोग बचपन में ऐसे गेम खेलते थे, आई देखो, रोक दिए, रोक दिए। ऐसे करने के बाद क्या होता था, लाइट, दिस इज ओपेक ऑब्जेक्ट, हैंड से लाइट पास नहीं करेगा। हाँ, तो उधर वो जो डॉट पड़ रहा है उसको ऐसे रोक दिए। अब जो छोटा छोटा बच्चा हो तो खुश हो जाता है, वही वही, ऐसे दिन भर का काम रहता था और कोई काम ही नहीं रहता था। एक फटा हुआ चड्डी और बनियान पहन के आदमी क्या ही करेगा, दे दिया इतना वो काफी है, क्यों क्यों करेंगे काम, कुछ अच्छा कपड़ा दो तब करेंगे। So you see that minute dust particle in that beam of light, that dust particle is present in all over the room. Right now it is also present, but it is not visible because light is falling at it but not getting reflected. There is no reflecting surface. जैसे बारिश होती है तो यहाँ से जब ऐसे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आता है तो ऊपर नहीं दिखता है, लेकिन जब किसी बिल्डिंग के सामने से गिर रहा होता है या जब कोई कार क्रॉस करता है तब वो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखता है, बिकॉज लाइट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम एंड देयर इज नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी व्हेन ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जैसे यहीं पे बारिश होता है तो देखो वो जो लिखा हुआ है, थोड़ा कैमरा उधर घुमा दो, कॉपीराइट तो नहीं ना आएगा। तो वो जो देखो वहाँ से जो व्हाइट कलर का बिल्डिंग है ना, वहाँ से जब ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऐसे गिरता है तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ ये रोड पे जब ये सागर स्नैक्स मेगा मार्ट जो है, यहाँ से जब ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऐसे नीचे आता है तो वो विजिबल हो जाता है। क्यों? वो जो उधर शेड है उसके कारण वो लाइट को इधर रिफ्लेक्ट करता है तो वो विजिबल होता है। ठीक है, तो अब क्या है, लाइट रेज जब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक हम देख नहीं पाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो टिंडल इफेक्ट एक्चुअली है क्या सर? लाइट स्कैटर्ड, ध्यान से सुनो, light scattered by the minute particles present in the atmosphere, that is known as Tyndall effect. Tyndall was a scientist who has discovered this concept, that's why it is known as Tyndall effect, and it is scattering of light. See, it is not dispersion of light, is the splitting of light into 7 colors. It is a kind of a fixed pattern, understood? Splitting of light into 7 colors is called dispersion of light. Okay, and it forms in a it is formed in a proper manner, proper pattern. It is not scattered in random directions. Now, how is rainbow formed? How is rainbow formed? So when And just tell me what time of the day or after what situation you are able to see the rainbow? after rain. After rain or in foggy day? Yes. In winter season? So why only after rain, not before rain? Sometimes it is before rain. How? No. If you are far away, that place rain happened already, and you are at that place rain has not happened until still you are able to see because that place is tiny drops of water present already. So how you already have given you the answer. So can anybody tell me that? How is this rainbow getting formed every day in rainy season So or the light passes through the raindrops. raindrops? Sunlight passing through the raindrops. So raindrop has the 7 color of light. Small raindrop or small drop of water, ऐसे बनाते हैं ना? Yes. Small drop of water present in the nature has the, so here is the rainbow form. How is it? And why is it of spherical semicircle? Semicircle shape. Firstly, tell me how is rainbow formed? The rainbow is produced by a dispersion of white sunlight by the raindrops in the So, atmosphere. raindrop has the 7 color or white light has the 7 color? White. White light has the 7 color. Here is your answer. After rain, there are trillions of droplets of water, tiny droplets of water present in the atmosphere. When a white ray of light passing through this
white light, it gets dispersed or refraction of light occurs at that time. Because you know that this is coming from the air medium and it is entering into water medium. So water medium has more refractive index. So and speed of light decreases in denser medium. Okay. So if it is traveling here at 3 lakh km per second, then it might not travel with that speed in water. So it will bend towards the normal. That's why it is in semicircles. Correct? It is like passed from this drop, then bend, then pass this drop like this. So it is always getting each and every drop, after each passing through each and every drop, it is getting bent and ultimately it is formed of semicircles. And as you know, violet color will be in the lowest below bottom line, and the red color would be on the top. Rest of the color in between that. Okay, and you know the reason why is it so? Because red color dispersed less, longest wavelength. Okay, so that's trillion droplets of water, tiny droplets of water present in the atmosphere, which actually acts like a small piece, which हाँ बगलो तुम्ही को बता रहे हैं जो वीडियो देख रहा है हाँ तो which acts like a वीडियो वाला गुस्सा जाएगा कहेगा हमको बगलो बोल दिया नहीं देखेंगे मत देखो ऐसे दे रहा है क्या हमको एक्चुअली में दे रहा है कोई बात नहीं टेक इट इजी अब आगे बात करें तो when a ray of light passing through a tiny drop of water, that small drop of water acts like a prism. So some student and one of the students said, "Sir, water has all the 7 colors?" No. As you said, water does not have all the 7 colors. It's the white light has all the 7 colors. White light is the combination of all the 7 colors. So when it passes through the small drop of water, firstly medium change, so it will bend towards the normal. If it is traveling from rare medium to denser medium. Again, when it will get out of the droplets of this water, then it will gain little speed, like air, whatever the speed of light in air, 3 lakh km per second, and then after again it will enter to the next drop, and again it will bend. Okay, so this happens perpetually, one after one drop. Okay, and it form a continuous pattern, which is in childhood kind of a इंद्रधनुष देख लीजिए आज हम इंद्र भगवान का धनुष देख लिए आज खुश होते थे क्या आनंद रहता था जैसे दिखता था ना अरे वो देख रहे रेनबो रे अरे रेनबो तो पता ही था इंद्रधनुष अभी ऐसे फोन चलाएंगे इंद्र भगवान बारिश होगी क्या दिन थे वो किधर गए अब तो मोटा हो गया पेट निकल गया बहुत अफसोस होता है इंद्रधनुष का जवाना हो गया बोलेंगे अभी बोल रहे हैं इंद्रधनुष तो समझ में आया तुम लोग को इंद्रधनुष कैसे फॉर्म होता है अब कोई क्वेश्चन बच गया बचाओ टिंडल इफेक्ट हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट इट्स नॉट स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इट्स scattering of light. लाइट स्कैटर्ड हाँ इन डिफरेंट रैंडम डायरेक्शंस हाँ अब एक क्वेश्चन अभी भी छूट गया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्स व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्स हमको याद है लेकिन पढ़ने वाला को याद नहीं है थोड़ा खैनिया खा ले क्या बच्चा लोग को दिखा लेते कहेगा सच में इतना बढ़िया स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर कहीं नहीं खाते नहीं हम खैनी नहीं खाते भाई ओए बकलोल बढ़ाओ सच में तुम ना मतलब डिग्निफाइड मैनर रखो दुनिया में दोनों प्रकार के लोग हैं कोई बात नहीं खैनी देखो क्या नकली खैनी क्या है ये जीरा है जीरा अभी ये कहेगा पाचन शक्ति कमजोर है सर का इसलिए है ऐसा कुछ बात नहीं है थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा ना तब फिर पढ़ाने में मजा आएगा अभी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पढ़ना है बोलो हर हर महादेव शिव शंभू डमरू वाले जटाधारी की जय हो जीरा और चीनी खा के उतना किसके लिए इससे एनर्जी बना रहता है नहीं तो पढ़ाने में मन नहीं लगता है अगर एकदम सड़ा हुआ बोर्डिंग टीचर जैसा आ गया अरे लिखो रे बच्चा लोग भी कह रहा है बाइक लगा का है क्या लिखो रे ओके so what we are about to discuss now are you recording यस सर कोई बात है
इंसान है, ह्यूमन बीइंग है। ओके बोलो। एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। थोड़ा क्लास इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ये सब तुम लोग को समझाने के लिए है। हम ऐसे बिल्कुल नहीं, अभी कितना अच्छा से गोलू मोलू चुपचाप बैठे हुए थे। गोलू कोई शर्माते हुए देख रहा है। अभी पता है कल एक बच्चा इधर से क्रॉस कर रहा था, वो हमको देखा, पहले सोचा सर को स्माइल दे। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन? व्हाई स्टार्स ट्विंकल? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. और क्या है आगे? अब Above the high sky, क्या है आगे? वर्ल्ड The world so high, Why the world so high? लाइक एंड डायमंड इन द Huh? स्काई। like a diamond in the sky. Like a diamond high in the sky. ऐसे पहली बार कोई टिप्पल टिप्पल गाया होगा ओपेरा फॉर्म में। ओपेरा ना, Yes. उधर उधर से कोई आएगा उधर से कोई ठंडा होकर लेगा। इट्स ओपेरा नॉट ओपेरा। एक बहुत अच्छी स्पीकर है ओपेरा विनफ्री, नाम जानते हो उनका? Nice. नहीं, बहुत अच्छी है। ओके, काम होते की बात करें। Yes. Atmosphere. What is Refraction. atmospheric reflection? Twinkling of like the world. What is atmospheric reflection? Why stars twinkles? Why the color of the sky is of blue color? सर वो क्वेश्चन पूछिए ना, बारिश कर देते हैं एकदम। कुछ देर पहले तो खड़ी खा रहे थे, मैं सॉरी सोफ खा रहे थे। जीरा। जीरा। So the refraction of light caused by the Earth's atmosphere is called atmospheric refraction. हाँ, देख के तो कोई बोल सकता है, जरा समझा के दिखाओ, आ जाओ इधर। हाँ, बोलो, समझाओ मुझे। I am थोता बत्ता। How will you explain to me? Albert Einstein apparently said once, if you are not able to explain a theorem to a 10-year boy, you haven't understood. क्या? You haven't understood. अच्छा। You haven't understood. हमारे हमारे जो एयर में होते हैं बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो उसमें से जब सनलाइट पास करता है तो वो रिफ्रैक्ट होता है और अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। अभी बताया ना, धरती पे रेन का बारिश होता है। Yes. चलो उस प्लेनेट का नाम बताओ जहाँ डायमंड की बारिश होती है। उस प्लेनेट का नाम बताओ जहाँ पे ग्लास की बारिश होती है। उस प्लेनेट का नाम बताओ जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। उस प्लेनेट का नाम बताओ जहाँ पे 128 किलोमीटर पर आवर से उधर किधर कैटरीना आई थी ना, अपने देश वाली कैटरीना नहीं, उधर कैटरीना आई थी अमेरिका में, और भी बंगाल में कोई आई थी सुनामी, उसका नाम याद नहीं, तो उसका नाम था 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहाँ पे हवा चलते रहती है। बताओ उस प्लेनेट का नाम क्या है? बताओ उस प्लेनेट का नाम क्या है? एक बच्चा ने बोला सर वो डायमंड किस प्लेनेट पे गिरता है? बोले बता तो देंगे बेटा, जा नहीं पाओगे। बोले सर प्लेन से जाएंगे। नहीं अगर प्लेन उधर नहीं जाएगा, फ्रीज हो जाएगा रास्ते में, ठीक है? तो सर कैसे? बोले वो एलन मस्क से बात करो। एलन मस्क, वो कोई एलन मस्क है ना, हम तो एलन मस्क को जानते हैं, एलन मस्क को नहीं जानते हैं क्या? हाँ, ओके। सो व्हाट यू सेड इज करेक्टली, एंड एज यू सेड देयर आर डिफरेंट लेयर्स। कौन सा? स्ट्रेटो, ट्रोपो, मेसो, लिथो, एक्सो, ये सब डिफरेंट layers of the atmosphere. You know, in the out of the Earth's atmosphere, there is somewhere in the space nearby strato, meso and exosphere. क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपो, स्ट्रेटो और मेसोस्फेयर के आसपास, उससे थोड़ा ऊपर जाओगे, वहाँ पे कभी कभी टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस माइनस के प्लस, ठीक है? एयर का टेम्परेचर रहता है, सोच लो, ठीक है? और कहीं कहीं पे -90, जो ये ट्रोपो और स्ट्रेटो होता है, समवेयर इट इज, वो आपके दादू जी है क्या? दादाजी यहाँ पे नहीं है। वो जो देख घूर रहे हैं वो कौन है? बिल्कुल भी नहीं है मेरे दादाजी। किसी को भी दादू दादा नहीं है। तो इधर देखो, तो कहीं कहीं पे -90 डिग्री। आयरन मैन देखे हो फर्स्ट पार्ट? नहीं देखे हो? अच्छा, आयरन मैन ना अपना एक सूट रहता है उसका, छोटा बच्चा लोग जानता होगा, कॉमिक वाला मूवी देखता है, वो ना अपने सूट का जो है वो टेस्ट कर रहा था। उसका जो सूट है जारविस वैसे बच्चा लोग करेक्ट करेगा मुझे, तो ऊपर जाने का टेस्ट कर, ऊपर गया फ्रीज हो गया, फिर गिरने लगा नीचे, फिर नीचे अर्थ को टच करते करते बच गया और फिर ऐसे उड़ने लगा। फिर सो देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस इज द सन, ओके? आर यू एबल टू सी माय सन? It's not my sun, it's everyone's sun. This is the only sun in the world. Even Nirvans has a son. Do you understand Nirvans? No, Who is having no child.
So Nirvans has a son. Oh, now I understand. You understood? Nirvans has a son. This is very interesting. Nirvans has a son. Kind of a new English I have generated. So this is the different layers of the atmosphere. You know, nearest star after sun. You know that Proxima Centauri. So when light, just consider one. This is Proxima Centauri, for example. This is not my sun. Okay, this is someone else's sun. Okay, so this is Proxima Centauri, for example. So when a beam of light or a ray of light just emitted this movement, just emitted this movement, it will reach to the earth after 4 years. From मतलब किसी का आज शादी हुआ, 4 उसका- साल बाद भी पहुंचेगी घर. 4 साल बाद उसकी बीवी पहुंचेगी घर. क्या? मान लो कि someone had a child today. हाँ. So when this child will become of age of 4, that light will reach here and उसका बेटा इसे देखेगा, पापा star is twinkling. अब क्यों? अब वो 4 साल बाद, आपको पता है there are million trillions of planets, trillions of galaxies. So the star you're seeing that of a like a mustard seed or like a little more bigger than that. So some stars are far away from us, that is 128 light year away. So that light which is coming from that position, that is not the exact position of the star. That star has already moved from that planet. For example, just consider the one ray of light or beam of light which is just emitted now, it will take 4 years to reach here. So Proxima Centauri will be at that place only for 4 years. No, it will shift. Like the earth, like the sun, everything is in spiral form, as you see in the galaxy. Okay, picture of galaxy have you seen? You haven't seen the galaxy, you can't be. Okay, so है एक जगह that गैलेक्सी. takes 4 years to reach our planet. That's apart from that, when these ray of light passes through different mediums, you have seen stars like this, correct? Yes, Am I right? fake star. Fake star. This is not the real shape of the stars. तो वैसे ही है जैसे sun है. हाँ, गोलू मोलू सा. Hello, how are you? बहुत गंदा दिखता है सर, वो बहुत जबरदस्त. सर स्टार कैसे बनाया आप? जिसकी खूबसूरती का पता नहीं उसको तुम गंदा बोल रही हो. भगवान भला ये करे. नहीं. भाला? मतलब वो सब तो भला करे. भला थोड़ी ना बोल लूडो रहे. जैसा गंदा दुनिया दिखता है. गलत समझती है. सर स्टार तो अच्छे हम से गलत बना ही पैदा हुए दीजिए. थे. Sorry, क्या बोल रही हो? गलत ही बात. अब तो हाथ बना दिए सर. हाँ, वो सन है, बट आपको दिखता है ऐसा है स्टार. अगर ये कोई स्टार है तो एक्चुअली में ये ऐसा है, गोलू गोलू हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा, और आपको दिखा रहा हो बस ऐसा. This is all the work of atmospheric difference. So, as you know, as you have studied refraction of light, correct? Yes. So when it passed from, as you just tell me one thing, what would be the temperature near the sun? Lesser or greater than rest of the world? Later. Greater. So molecules will be sparsely populated. So if there will be a sparsely populated molecule, then light will scatter less there. Yes. It will pass from. As you will come, as the ray of light reach the earth, near to the earth's surface, so it might be deviated more because of the minute dust particle or moisture present near the earth. आप ये तो मानती है ना कि अर्थ के नजदीक डस्ट पार्टिकल जो होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा एज कंपेयर टू Yes, sir. हाँ सन. करेक्ट? गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. So this is rarer medium and this would be denser medium. Correct? So when light comes from this, then it will bend towards the normal. This is the normal. So this is happening to all the ray of light, whatever coming to this planet. Now it is passing through a different medium. Now this light will this would be like zigzag path. You know why? Because somewhere light is coming from all the directions. Yes. Sun is overhead like this. Sun is 109 times greater than Earth. Means Earth का 109 को बॉल लेके उसमें ठूसेंगे तब सन का पेट भरेगा. 109. इतना बड़ा सन का पेट है, समझे? 109. 109. तो आप समझिए, तो इतना छोटा सा बॉल होगा तो अर्थ पे लाइट तो एकदम ऐसे पड़ रहा है. तो लाइट इज कमिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन. सो बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन,
फेरिक रिफ्रैक्शन। तो कैमरा ऑन करने में इतना पढ़ा भी दिया ना, कोई डर आता चुपचाप। हाँ, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। So now it is clear that why stars twinkle. मेरा फिर से मन कर रहा है गाने का। प्लीज गाओ, तुम ही गाओ, तुम छोटी बच्ची जैसा लगोगी। मेरा तो भैंस वाला, सॉरी नहीं, मतलब आवाज वैसे आप मोटा है। आप नहीं। हैं? चलो साथ में गाते हैं। क्या है? ट्विंकल 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 ट्विंकल। तुम भी तो साथ गाओ तब ना। ये सब नहीं आता सर हम लोगों तुम लोग को नहीं आता है? मतलब मतलब ट्विंकल ट्विंकल आता है, आपके लैंग्वेज में नहीं आ रहा जो आप बोल रहे ना, ट्विंकल ट्विंकल। क्या ट्विंकल 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 ट्विंकल? Twinkle twinkle little star. How are under? What you are? Up above the World so high. up above the world so High. high. The drugs लिया है world high. दुनिया Like a diamond. Like a diamond. like the Like a diamond in the sky. like the diamond in the sky. याद हो गया, सब पर्पस ये था। Diamond is the most reflecting one. The diamond reflects the lights most. More than mirror. हाँ? More than mirror. But diamond is the most scattering, इसीलिए तो शाइन करता है पूरा ज़्यादा, ठीक है? Reflecting object. अब so now what was the lesson? Why sky appears blue? Sir, because the light is refracted. Violet, we know that violet color is the most scattered light, but our sky looks blue. See, the intensity of blue color is more than the violet color light. We know that blue color is also scattered, but it is scattered. You see the that spectrum, Yes. violet, indigo, then after VIP. Third position is the Blue. blue. The blue color is the third most deviated color in that spectrum. Okay. So blue color is the third most deviated light. So but the intensity of blue color is more than that of violet color. That's why sky looks blue. And as you know, the blue color has the shorter wavelength as compared to red color, and rest of the colors above that in vigor. So it is scattered most. That's why sky appears blue in color. Understood? Any other topic or something I have left? Rainbow done. Sir, अगर कम Okay. स्कैटर होता तो फिर हम लोगों को वायलेट कलर में दिखाई देता स्काई. Yes, अगर intensity ज़्यादा होता, if blue violet color has the more delayed sun, advanced sunrise and delayed sunset. The diagram you might have drawn. This diagram, you have seen this diagram. Yes. Yes sir. You see this one, advanced sunrise and delayed sunset. उनका भी notebook दिखा दीजिए, flower भी बनाइए। हाँ। कहाँ हमको दिख भी नहीं रहा। इन सब से तो मेरा है। वो फ्लावर तो दिखाई नहीं, फ्लावर ही बनाई है वो। फ्लावर नहीं दिखाया, देखो कितना ये कंजूस है ये। मेरे कॉपी में भी है। आपका लंबा कॉपी है। हम भी दिखा देते हैं। हमारा पूरा बनाया हुआ है. मेरे ज़्यादा सुंदर है। हाँ, आपका ज़्यादा सुंदर है, वेरी गुड। ऐसा Right. कुछ नहीं है। राइटिंग सुंदर नहीं है, बस इसे राइटिंग नहीं दिखाएंगे। राइटिंग नहीं दिखाएंगे। राइटिंग सुंदर कब होगा? Okay, so what we have to discuss now? Sir, advanced sunrise and delayed हाँ, sunrise. एडवांस सनराइज मतलब अभी सन अंकल जो है अपने चुन्नू मुन्नू को एडवांस सनराइज घुमाने सन लगे। पहले उगता हुआ आपको दिख जाता है, लेकिन वो अभी अपने चुन्नू मुन्नू को घुमाने बाहर लगे। ही कर रहे होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है कि एडवांस सनराइज वी कैन सी द सन अबव 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज। तो जो छठी मैया को हम लोग ऐसे Yes. दिखा रहे होते हैं अड़ग, वो सन अंकल जो है अभी घर में अपने चुन्नू मुन्नू को चुप्पी दे रहे होते हैं और हम लोग उनको यहाँ अड़ग दिखा रहे होते हैं, ठीक है? तो इसलिए सन भगवान के मतलब सूरज भगवान के उगने के हम 2 मिनट बाद ही जाते हैं, क्योंकि हमको पता है अभी वो आए नहीं है एक्चुअल में। ये तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है जिसके कारण से वो दिखाई दे रहा है. अब देखो वो होता कैसे है, होता कैसे है, कैसे होता है अभी बता। पर वो अंकल नहीं, सर आंटी होती हो। सर आंटी। सूरज. सन अंकल होगी ना, सन आंटी देखो, होगी। सन अभी यहाँ पे है, ठीक है? Sun. और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है? बट ये आपको दिख यहाँ पे रहे हैं, क्यों पता है? ये आपको दिख यहाँ पे रहे हैं, दिस इज योर आई हियर, योर आई नॉट माइन,
नहीं Okay. सर, सर खुशीज आए। नहीं आयुषी का आई। कोई एक के आंख रखो ना, कोई सर आपको चश्मा लगा हुआ है तो मेरा आई नहीं हो सकता। इतना बड़ा आँख तो मेरा है भी नहीं। देखो अब सबसे बड़ा है। ऐसे नहीं दिखेगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट देना पड़ेगा जो इसमें आके मैच करेगा। देखो अब आपको सन यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? क्यों? अभी ये है कहाँ पे एक्चुअली? यहाँ पे। यहाँ पे क्योंकि as you know ray of light bending when it is traveling from air medium to rarer medium to denser medium. So near the earth all the mediums are denser medium as compared to far of the places from the earth. So sun uncle is still here. Sun uncle is still here saying bye to his chunu munu. और ठीक से रहना, बदमाशी नहीं करना, ओके? उनके चुनु मुनु को आप जानते हो? हाँ? दूसरे देश अर्थ। जहाँ सनसेट हो रहा होगा। अरे वो नहीं, मतलब वो उनका जो बच्चा है, हम लोग के बच्चे छोड़ो उधर क्या क्यों जाना। ओके, सो दिस लाइट बेंड्स व्हेन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मीडिया प्रेजेंट, सो इट इंटर्स टू योर आईज। हियर आंख थोड़ा नीचे ऊपर बन गया, ये आंख यहाँ बनेगा, समझे? और यहाँ से आप इन्हें देख पाते हैं क्योंकि ये ऐसे आके यहाँ पे इमिट करते हैं। तो ये देखो आपको दिख यहाँ रहा है, लेकिन वो है एक्चुअली कहाँ? यहाँ। इट टेक्स 2 मिनट्स। तो आपको पता है पूरे मंथ में आपका दिन कितना बड़ा हो जाता है? 2 मिनट सुबह, 2 मिनट शाम, 4 मिनट। एवरी डे 4 मिनट्स, 30 into 4, 120, 2 hours एक्सटेंडेड इन अ मंथ, ठीक है? सो because of the atmospheric reflection there is advanced sunrise and delayed सनसेट। सेम शाम के वक्त भी यही होता है। डिलेड सनसेट मतलब कि सन चला गया लेकिन जब भी लाइट दिख रहा है सन दिखाई दे रहा है। हाँ, मतलब आपको सन दिख रहा है लेकिन वो चला ऑलरेडी अपने घर में जाके चुन्नू मुन्नू का ऑल खींचा है, गला लग रहा है एकदम, हेलो बेटा, हेलो ले क्या लाए पापा क्या लाए? धूप लाए। नहीं, वो तो आप डेली लाते हैं, कुछ और नहीं लाए? हाँ बेटा, आज हीलियम और लिथियम खत्म हो गया था, थोड़ा भरवाने गए हैं। हाँ, हीलियम और हाइड्रोजन है उनमें, सन में। तो वो घर में जाकर चुन्नू मुन्नू हाथ पाँव मुंह कान धो रहे होते हैं, हाँ, अपने चुन्नू मुन्नू से प्यार कर रहे होते हैं, और आप अभी उनको आरती उतार रहे होते हैं। हाँ, चलो, आई एम नॉट हर्टिंग एनीवन सेंटिमेंट, ओके? these are all things whatever I say just to make you understand in a little funny way. I am also kind of क्या बोले, क्या दिखा क्या दिखा जो है सो है। ओके, सो एनी टॉपिक लेफ्ट? नो सर। हाँ? नो सर, नहीं है। राम राम रटते मारिया रघुपति नंदन कब आओगे? बताओ कब आओगे? हाँ बोलो। एनी अदर टॉपिक? नो Last सर। piece already explained. यस सर। Okay, so all done. Thank you so much everyone for this patience, and as usual, जय Jai